Hello, my dear friends and students. I have started this YouTube channel for those students who have opted IP and CS in their 11th and 12th class who are in the CBSE board. As you all know that CBSE has introduced the CS, the Python programming language in the curriculum of CS as well as in the IP. Uh, After a long time, the CBSE make changes in the curriculum of the computer science. Definitely, IP के अंदर तो चेंजेस होते रहते हैं, बट CS के अंदर काफी टाइम बाद में चेंजेस हुए हैं. So I am here to teach you the Python programming language. Not only the Python programming language, I will cover all the topics of the computer science as well as of the informatic practices. If I think all of you know, the CS has the code 083 and the IP has the code 065. So most of the syllabus, both if we see the both syllabus, यदि हम दोनों syllabus की बात करते हैं तो IP और CS में एक चीज कॉमन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बोथ हैव पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. डेफिनेटली कुछ टॉपिक्स कॉमन है, कुछ टॉपिक डिफरेंट है. सो हियर आई विल कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ द CS beginning from the 11th class definitely and till the 12th class and the project work, okay, for the both CS and IP. uh, One thing I want to mention that especially I have started this YouTube channel only for the CBSE student, and if you are preparing for the competitive exams, if you want to, if you are trying to prepare, if you are trying to get government job like the JTO or the computer teachers, then in the NVS and in the KVS, then definitely my videos are very helpful for all of you. But uh, if I personally talk about, then this channel is especially for the CBSE class students only. Okay, because I will cover all the topics of the one by one, all the topics of the CS and IP. Okay, so let me introduce firstly what is the computer science and the IP. Okay, all of you have opted either CS or IP in the 11th class. So I will tell you why the CBSE has introduced the Python programming language. If you see the CS syllabus, then the CS has C++ and IP has Java programming language. But now both programming languages are replaced by the Python programming language. Why the CBSE has introduced the Python programming language? What are the features of the Python programming language, and how can we work with the Python programming language? So I am going to start uh, the your syllabus of the CS and IP both. Okay. So in this video, I will cover what is Python. Then after that, what are the features of the Python. Then after that, how to install the Python. Because if we see the Python programming language, then we have variety of platform where we can use Python programming language to develop the variety of programs. And the Python has variety of uses also. So which platform is better for your task? Okay. So and how to install the Python programming language, how to install the IDE, I will discuss in this video. Then definitely how to work with the Python. Basically in the Python we can work in two mode. One is the interactive mode and second is the script mode. According to your syllabus, I will cover all the points. So according to your syllabus, so we have two modes, interactive and script mode. So we will cover both mode. Okay. Then definitely a simple program. I will cover simple program, not only the single program. We will discuss two or three programs, two or three simple programs, how to, so that you are able, so to how you know that how to create the program and how to work with the Python programming language. So इस वीडियो के अंदर हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं. Python है क्या चीज,
उसके फीचर्स क्या क्या हैं, कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को इंस्टॉल करेंगे, एंड पाइथन के अंदर हम वर्क किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या तो इंटरेक्टिव मोड है, क्या स्क्रिप्ट मोड है, और हम प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, इन सभी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्टली लेट मी टेल यू व्हाट इज पाइथन. सो the topic is introduction of Python. Okay, uh, if you see in your book, this is the in the CS and IP both, it is chapter number 3, introduction of Python, getting started with the Python. Basically this is the chapter name in the curriculum of the CBSE. Okay, so let me start with the introduction of Python programming language. uh, all of you know that Python is the programming language. सभी जानते हैं इस चीज को कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट दिस इज द वेरी पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये एक बहुत ही पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कुडो पेन रोसम ने 1991 में डेवलप किया था. Who is the inventor of the Python? Kudo von Rossum. He is the inventor of the Python programming language. एंड इस लैंग्वेज का नेम पाइथन है, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है. रूसम जो इन्वेंटर है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, उनको एक बीबीसी का कॉमेडी सीरियल आता था, वो बहुत ज्यादा पसंद था, और उस बीबीसी सर्कस का नेम था, उस टीवी शो का नेम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग circus. Okay, this is the name of that BBC show, and the this language name is inspired by this BBC show. Okay, so as you all know, now the MCQ questions, you will find MCQ questions in the 11th as well as in the 12th class papers, because the CBSE has changed their pattern. उन्होंने अपने पैटर्न को चेंज किया है जिसके अंदर आपको OTQ देखने को मिलेंगे. सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों के सिलेबस से कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका नेम किससे इंस्पायर्ड था. सो ये एक इंस्पायर्ड था, एक कॉमेडी सीरियल था बीबीसी टीवी शो का, दैट इज मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस. उससे इंस्पायर्ड था, और पाइथन लैंग्वेज डेवलप की गई थी इन द ईयर 1991. एंड हु वाज द इन्वेंटर ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? गुडो वॉन रोसम. ओके, देन पाइथन आज के टाइम की यदि हम बात करें, पाइथन इज वेरी पॉपुलर लैंग्वेज. इसके पीछे सबसे मेन रीजन जो है वो है पाइथन इज वेरी इजी लैंग्वेज. इसको सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, चाहे आपका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है या नहीं है, आपने जूनियर क्लासेस के अंदर प्रोग्रामिंग सीखी है या नहीं सीखी है, कभी आपने कुछ किया है कंप्यूटर्स के ऊपर, इससे कोई लेने देना नहीं है. दिस इज वेरी इजी लैंग्वेज एंड बहुत ही कम टाइम में आप इसको सीख सकते हो. जनरली इफ वी सी इन द स्कूलिंग सिस्टम, द स्टूडेंट्स आर वेरी बिजी विद देयर पीसीएम. ओके, हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में काफ़ी बिजी रहते हैं, या फिर हम कॉमर्स स्टूडेंट्स की बात करें, हमें अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडी इतने ज़्यादा बिजी रखते हैं कि हम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाते हैं. देन इफ यू हैव ऑप्टेड CS एंड IP, दिस इज द वेरी बेस्ट चॉइस. रीजन बिकॉज यू आप सबसे पहली चीज तो एक लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे, और वो भी कम टाइम में, एंड डेफिनेटली बाकी जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा आगे आओगे आप मार्क्स के अंदर. मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जहाँ पर मैं जॉब कर रहा हूँ, अजमेर रीजन के अंदर मेरे पास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है, एंड सबसे ज़्यादा 90 प्लस के स्टूडेंट्स मेरे पास से आते हैं. सो यही रीज़न है कि मैं अब यूट्यूब के ऊपर आ रहा हूँ, जिससे कि मैं मेरे नॉलेज को सभी के साथ शेयर कर सकूँ. दिस इज द मेन रीज़न. ओके, सो पाइथन एक very easy programming language. Definitely this is a very powerful object oriented programming language, and this is very easy programming language. With the very less time we can learn it. If we compare it with the C++ and Java, this is very easy language, and the reason behind that, this is the most you can say it is the expressive language. ओके, सिंपल एक्सप्रेशंस के साथ आप अपने प्रोग्राम को लिख सकते हो. ओके, हमें ऐसा लगेगा जैसे हम इंग्लिश के अंदर किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए जा रहे हैं, इस टाइप की लैंग्वेज है. ओके, और जब भी हम कोई बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं तो इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं आती है.
यदि आज कोई मेरे से पूछता है कि मेरे को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है और मेरा प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं सबसे पहले उसको सजेस्ट करूंगा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखिए। रीजन, ये काफी इजी है, इसमें कोई ज्यादा सिंटैक्स हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी सभी यदि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, हमें सिंटैक्स भी याद रखना होता है और भी काफी सारी चीजें होती हैं। सो आज के टाइम में पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो काफी इजी है, अट्रैक्टिव है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वैरायटी ऑफ यूजेस काफी सारे हैं। विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज we can create desktop applications, we can create online applications, web applications, we can use it in the gaming। हैकर्स काफी ज्यादा इसको लाइक करते हैं, ठीक है। तो इसके काफी सारे यूजेस हैं, इस वजह से ही सीबीएसई ने आपके कैरिकुलम के अंदर इसको इंक्लूड किया हुआ है। ओके, सो आई थिंक आने वाले टाइम में आप भी इस चीज से एग्री हो जाओगे, जब आपको पढ़ने में मजा आएगा, जब आप पाइथन को लर्न कर रहे होंगे तो आपको मजा आएगा कि हाँ हमने कुछ अच्छा सीख रहे हैं, और वो भी बहुत ही कम टाइम में, और हर एक रिक्वायरमेंट को हमारी ये फुलफिल कर रही है। तो आप भी मेरी तरह से एग्री हो जाओगे कि पाइथन एक इजी लैंग्वेज है। ओके, so in short, if I want to conclude introduction of Python programming language, this is the highly powerful object-oriented programming language. If you want to note it down, you can note it down. There will be no problem. Okay. Uh, uh, if I repeat it again, the Python is highly powerful object-oriented programming language, and it is too easy programming language, and it is developed by Guido von Rossum in the year 1991, and this language name is inspired by the BBC comedy serial, that is Monty Flying Circus. Okay, Monty Python's Flying Circus, right? Now this is the introduction of Python. Now, he is the inventor of Python programming language, Guido von Rossum. Okay. Now we will discuss what are the features of Python. Now, if we see the features of Python, then I have discussed it. The Python programming language is very easy programming language, and the Python programming has a variety of uses. It is very important feature, that is it is portable. Okay, it has large library, I mean it has many predefined functions that we can use. Okay, so let me show you what are the features of Python programming language. One by one we will discuss all the features of the Python. So see, these are the features of Python. So the first one is the simple language, easy to learn. This is the main advantage, and this is the main reason why CBSE has introduced the Python programming language, because in these days स्टूडेंट्स के ऊपर काफ़ी सारा बर्डन होता है पीजीएम का, देन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, जेई के लिए हमें प्रिपेयर करना है, नीट के लिए हमें प्रिपेयर करना है। सो इस सब्जेक्ट को स्टूडेंट्स काफ़ी कम वेटेज दे पा रहे थे, काफ़ी कम टाइम दे रहे थे, एंड आज के मॉडर्न टाइम के अंदर कंप्यूटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। सो सीबीएसई ने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया सिलेबस में, जिससे कि स्टूडेंट्स के लिए ईजी रहे, स्कोरिंग भी ईजी रहे, और इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स है उनको हम ईजिली एक्सेस भी कर सकें। Okay, so the first one is the simple and easy to learn. Okay, this language is very simple, and you can easily learn it. Okay, and the reason behind that, it has very less syntax. Okay, simple जैसे हम इंग्लिश के अंदर कोई भी पैराग्राफ नोट कर रहे हैं, कुछ हद तक उसी टाइप की कोडिंग हमें करनी होती है। ओके, जब हम एग्जांपल करेंगे तब ज्यादा क्लियर हो जाएगी ये बात। नाउ द सेकंड वन इज द फ्री एंड ओपन सोर्स। पाइथन is freely available on the internet. You can go and download it, and you can use it. Okay, simply and open source है, definitely हम जो भी programs बना रहे हैं उनके source code भी आपके पास में open मिलेंगे आपको। Now the very most important feature of the Python programming language, it is platform independent. That means this is the portable language. Portable language का meaning ये होता है, suppose that you have two laptops. Okay, one has Windows 10 operating system and second has Mac operating system. Okay,
Now, suppose that you have created one Python program in the Mac operating system, then you can easily run that same program in the Windows operating system. Okay, so this is highly portable programming language. Okay, and now the next feature is highly interpreted language. Python is the interpreted language. I think all of you know about the compiler and interpreter. So the Python is interpreted language. Okay. Now the next feature is its completeness. Large standard library. Large standard library जैसे C++ के अंदर भी हमारे पास में लाइब्रेरी होती है, जावा के अंदर भी हमारे पास में लाइब्रेरी है. बेसिकली हियर लाइब्रेरी जैसे आपकी स्कूल के अंदर लाइब्रेरी होती है. इट इज द कलेक्शन ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, मैगजीन, novels, all these things, newspapers. As it is same, the Python programming language has many predefined functions, okay, which are divided into different modules. Okay, we will discuss it in the some next videos. Okay, but पाइथन के पास में आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितनी भी आपको जिस मॉड्यूल से रिलेटेड आपको फंक्शंस की रिक्वायरमेंट है, लाइक आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस चाहिए, आपको वेब एप्लीकेशंस बनानी है उसके लिए आपको फंक्शन चाहिए, आपको साइंटिफिक कैलकुलेशंस करनी है, न्यूमेरिक कैलकुलेशंस करनी है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज बनी हुई है. तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी लाइब्रेरी यूज में ले सकते हो. Okay, like in the Java we use import statement to include the different libraries, different packages. As it is same, we have to include modules in the Python programming language with the help of import statement. We will discuss it later, no problem is there. Okay, now the next one is the object oriented language. Object oriented language. So if you want to solve any problem, then object oriented language is very good choice. So the Python is the object oriented programming language. And the last feature is, and very important feature, that is variety of uses. You can use Python programming language for the desktop applications, for the web applications, for the GUI application, for the gaming development. Okay, we can use Python programming language. Okay, clear? Now move to the next point. All are the features of the Python programming language. If you have any doubt, you can ask, you can write your comment in the comment box and I will give your answers. Okay. Now the next point is how to install the Python. Now to install the Python, let me show you the steps. Now I will tell you how to install the Python. To install the Python, we have to go on the python.org. This is the official website of the Python programming language. Okay, for that, open the web browser. Okay, and in this type the python.org downloads. Now from here you can see this is the link, download Python 3.9. This is the latest version of the Python. Okay, just click on it. When you click on it, it starts the downloads. Okay, see here, downloading will begin. So I have already installed the Python. Okay, so just by डबल क्लिकिंग, सिंपली डबल क्लिक करना है आपको. यदि आपको विंडोज के लिए चाहिए तो विंडोज के लिए डाउनलोड कीजिए. यदि आपको मैक के लिए, जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको रिक्वायरमेंट है, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आप अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डाउनलोड कर लोगे. नाउ व्हेन यू डाउनलोड इट, नाउ एक बार डाउनलोड करने के बाद में अब आपको क्या करना है, आपको मेन्यू में जाइए अपने स्टार्ट बटन के ऊपर और जस्ट यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी पाइथन लैंग्वेज डाउनलोड हो चुकी है और इंस्टॉल हो चुकी है. देन सी Python, I am using version 3.7. Okay, now see here, you have IDLE Python 3.7. Okay, so IDLE here, when you click on it, the Python shell will appear. This is the Python shell. Okay, so when you install the Python, then it install the IDLE. IDLE, it stands for Integrated Development Learning Environment. IDLE. So mostly if you refer the
book Sumita Arora. If you refer the NCERT book of the IP and CS both, then um, both in both books the writer have used this software Python IDLE. Okay, one is the Python IDLE, and I will show you another software, that is Anaconda. Okay, these two software have used for your syllabus to write the coding. Okay, so this is the first software, that is Python IDLE, Integrated Development Learning Environment. Okay, so I think all of you are able to know how to install the Python programming language. Okay, then क्या करना है आपको, सिंपली python.org पर जाना है आपको, डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक किया, डायरेक्टली डाउनलोड का लिंक आएगा, सिंपली डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए. ओके, नाउ सपोज दैट आपको अपने सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल ही नहीं करना है, उस केस में आपके पास में एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है. ओके, गूगल आपको कोलैब नेम से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, कोलैब. ओके, कोलैब के ऊपर आप जाओगे तो यहां से आपको कुछ हद तक जुपाइटर टाइप का एक लुक आता है. जुपाइटर भी एक सॉफ्टवेयर जो एनाकोंडा के अंदर आपको मिलेगा. ठीक है, तो आप वहां से भी अपने प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो. ठीक है, दिस इज द कोलैब. ओके, करना क्या है, कोलैब के ऊपर प्रोग्राम्स को रन करने के लिए आपको सिंपली सबसे पहली चीज तो आपको यहां पर आके इसको कनेक्ट करना है. ठीक है, आप सिंपली आपने क्या किया है, कोलैब लाइब्रेरी ओपन की है, कोलैब लेबोरेटरी. जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया, ओपन हो जाएगी. देन इसको आपको कनेक्ट करवाना है. कनेक्टिंग हो रही है, यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, सिंपल क्लिक करके इसको कनेक्ट करवाया है. ओके, ये क्या करेगा, आपका जो गूगल सर्वर है उसको पाइथन 3 जो वर्जन है उससे कनेक्ट कर देगा. ओके, नाउ आफ्टर दैट ये जो प्लस साइन आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपकी कोडिंग विंडो ओपन होगी, एंड फ्रॉम हियर यू कैन राइट योर कोड. ये देखिए यहां पर आप अपने कोड को राइट कर सकते हो. मैं एक सिंपल कोड रन करके दिखा रहा हूं आपको. प्रिंट, देन 10 + 20 कर दिया. मैंने बोला था एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है ये. सिंपली आपको क्या करना, प्रिंट करवाना 10 + 20. तो ये क्या करेगा, ये रन बटन आपका, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपका कोड रन हो जाएगा और आपका आउटपुट दिखाई दे जाएगा. सो यदि आपने अपने सिस्टम में पाइथन को इंस्टॉल नहीं करना है, सपोज दैट आपके सिस्टम में स्पेस नहीं है, वैसे इतना बड़ा हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है, फिर भी यदि या फिर आप कहीं पर हो जहां पर आपको अपने प्रोग्राम को रन करना है और आप नहीं चाह रहे हो कि उसमें पाइथन इंस्टॉल करूं मैं, तो आपके पास में ऑनलाइन टूल भी अवेलेबल है, कोलैब. ओके, ये गूगल प्रोवाइड करता है और इसके ऊपर आपने जो भी काम किया वो ऑटोमेटिक जी ड्राइव के ऊपर शेयर हो जाएगा, तो आप अपनी कहीं पर भी अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो. Okay, so this is the second platform where you can run Python programs, and I want to tell you one more platform, that is Anaconda. Okay, Anaconda platform आपको काफी सारी बिल्ट इन लाइब्रेरी ऑलरेडी इंपोर्टेड है, उसको सिंपली आपको यूज में लेना होता है. इसलिए जनरली जो भी डेटा साइंस का जो भी टास्क होता है, डेटा साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल, इस टाइम सबसे ज्यादा पॉपुलर जो ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की वो है. ओके, सो यदि आप अपने प्रोग्राम्स को एनाकोंडा प्लेटफॉर्म के ऊपर रन करना चाह रहे हो, तो इसमें आपके पास में दो चीजें रहेंगी. देखिए, एक तो है स्पाइडर, एक है जुपाइटर. ओके, स्पाइडर के ऊपर जैसे आपने क्लिक किया, आपके सामने स्पाइडर ओपन होगा, एंड एक और ऑप्शन आपके पास में, स्पाइडर में कैसे प्रोग्राम्स रन करेंगे, स्पाइडर में कैसे प्रोग्राम्स को क्रिएट करेंगे, वो भी मैं अभी बताने वाला हूं आपको. एंड ये देखिए स्पाइडर ओपन हुआ. दिस इज द विंडो फॉर द स्पाइडर. ये भी एक आईडीई है, आईडी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. ये भी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है, जहां प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर आप अपने प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो. देन अभी मैंने प्रिंट कमांड लिखा था, तो वही वापस से लिख रहा हूं मैं यहाँ पर. प्रिंट 10 + 20 किया. So how to run this code? Simply this is the play button. So when you click on this play button, your file will be run, and see this is the output. यहाँ पर आपको आउटपुट दिखाई देगा, ये वाली जो स्क्रीन है. I think all of you are able to see.
ओके, जहाँ पर मेरा माउस पॉइंटर है इस टाइम वहाँ पर आपका आउटपुट दिखाई देगा। ओके, तो ये स्पाइडर के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अभी स्पाइडर हो गया। देन एक और है हमारे पास में, दैट इज जुपाइटर। जुपाइटर मोस्टली जो वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं या फिर जो यूट्यूबर्स हैं जो वीडियोस बनाते हैं उन सभी के लिए जुपाइटर नोटबुक काफ़ी हेल्पफुल होता है। जुपाइटर नोटबुक का जो आउटपुट है वो हमेशा ब्राउज़र में ओपन होता है और इस ब्राउज़र में आप न्यू के ऊपर जाओगे और पाइथन सिंपली यहाँ पर आई आई थिंक जो आपने कोलैब के अंदर देखा था, कोलैब में भी ये ऐसी चीज़ देखी थी हमने, राइट? यहाँ पर देखिए कुछ हद तक ऐसी चीज आ रही थी, सेम चीज जुपिटर के अंदर आ रही है। सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, कमांड स्पेसिफाई करने हैं। 10 + 20 किया, देन रन करेंगे, आपका आउटपुट दिखाई दे जाएगा। ओके, सो मैंने आप लोगों को यहाँ पर 3 सॉफ्टवेयर बताए हैं, 3 प्लेटफॉर्म बताए हैं। एक तो आइडियली है जो जो python.org के ऊपर आपको मिलेगा, सिंपली आपको उसको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम के अंदर। ओके, दूसरा यदि आप अपने सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना चाह रहे हो तो आप कोलैब, गूगल की कोलैब है, लेबोरेटरी है, वो आप यूज में ले सकते हो पाइथन के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। देन एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो anaconda.org के ऊपर जाके। ठीक है, वो एक वहाँ से आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा जिसके अंदर स्पाइडर, जुपिटर, ये काफ़ी प्लेटफॉर्म, अच्छे प्लेटफॉर्म है जो मोस्टली डेटा साइंस के अंदर यूज में लिए जाते हैं। आपकी बुक के अंदर भी स्पाइडर और जुपिटर को यूज में लिया गया है टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। जुपिटर और स्पाइडर यूज में लेने का एक एडवांटेज ये है कि उसमें काफ़ी सारी लाइब्रेरीज है वो पहले से प्री इंस्टॉल्ड है, आपको अलग से पीआईपी इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब ये पीआईपी इंस्टॉल है क्या चीज़, वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए बिल्कुल बिगनिंग से कर रहे हैं, इसलिए अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। सो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हाउ टू इंस्टॉल द पाइथन, पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है। सिंपली आपको एक python.org वेबसाइट है या फिर anaconda.org वेबसाइट है, वहां से जाके आपको अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है और सिंपली जैसे हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं वैसे आपको इंस्टॉल करना है। ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप सभी कंप्यूटर साइंस और आईपी के स्टूडेंट्स हो तो इतना आप कर सकते हो। ओके, नाउ अब हम इतना मैंने बता दिया कि हमें इंस्टॉल कैसे करना है और एक बार के लिए एक छोटा सा कमांड भी रन करके देखा है तो उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि हमने सिंपली प्रिंट लिखा था, 10 + 20 लिखा था, इसने 30 डिस्प्ले कर दिया। तो ये हर कोई भी देख के बता सकता है कि हाँ हम क्या करने वाले हैं। तो इसी टाइप के पाइथन सॉफ्टवेयर्स हैं, पाइथन के प्रोग्राम्स हैं जिनको आप सिंपली यूज में क्रिएट कर सकते हो, यूज में ले सकते हो। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वर्किंग इन पाइथन। थोड़ा सा एक डेमो हमने देखा था कि किस तरह से यूज में लेंगे, अब हम डिटेल से बात करते हैं। वर्किंग इन पाइथन, आई विल यूज आइडियली फॉर दैट। ओके, आइडियली के बारे में हम ज्यादा डिटेल से बात करेंगे, बट बिफोर दैट अकॉर्डिंग टू योर बुक आई विल कवर दिस टॉपिक बिकॉज this is a very important thing for the theoretical point of view, that working in Python, with the Python you can work in two manner. One is the interactive mode and second is the स्क्रिप्ट मोड। अब ये इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। वर्किंग इन इंटरेक्टिव मोड, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेक्टिव मोड की। सो इंटरेक्टिव मोड के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आईडीएलई को ओपन करना है। और जैसे ही हम आईडीएलई ओपन करते हैं तो क्या होता है, देखिए आपके सामने पाइथन सेल ओपन हो गया। ओके, इंटरेक्टिव मोड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप अब ये जो 3 एरो साइन दिखाई दे रहे हैं और कर्सर जहां पर ब्लिंक कर रहा है वहां से आपको अपना कोड लिखना स्टार्ट करना है। ओके, जैसे हमने किया प्रिंट, प्रिंट के अंदर कर दिया हेलो माय डियर फ्रेंड्स। ओके, then simply print the value. Okay, that means okay, let me tell you one thing, 20 + 50
it will show the result in the next line. Okay, so we will write the command in the line number 1 and in the next line it shows the result. Okay, जनरली हम इंटरेक्टिव मोड को यूज में लेते हैं टेस्टिंग पर्पज से, जैसे किसी फंक्शन के बारे में हमें नहीं पता है, ओके, उसको हमें चेक करना है, ओके, देन वी यूज इंटरेक्टिव मोड। अब इंटरेक्टिव मोड की यदि हम बात करें, इंटरेक्टिव मोड का एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, वो क्या है, इसके अंदर हमने जो भी टास्क परफॉर्म किया उसको हम सेव नहीं कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स। ओके, जैसे हमने लाइन नंबर 1 में कोई भी कोड लिखा, वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आउटपुट शो कर देगी। ठीक है, सेम विंडो के अंदर हमारे को आउटपुट दिखाई दे रहा है। जबकि प्रोग्राम के अंदर हम क्या बात करते हैं, इफ यू सी द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम्स आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस and in the interactive mode I am executing only the one line, then immediately it shows the result in the next line. Okay, but if we see the program is the collection of statements, so we can't create the program in the interactive mode. The interactive mode is used only for the टेस्टिंग पर्पस। आपको किसी स्टेटमेंट्स को चेक करना है कि इसका इस पर्टिकुलर फंक्शन का आउटपुट क्या आने वाला है, तो उसको हम यूज में ले सकते हैं। क्लियर है? ओके, देन बाय डिफॉल्ट जब भी हम आइडियली को ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिक वो इंटरेक्टिव मोड के अंदर ही ओपन होता है। क्लियर? नाउ सो आई थिंक वर्किंग इन इंटरेक्टिव मोड क्लियर हो गया होगा। वी कैन वर्क इन टू मैनर with the Python. One is the interactive mode and second is the script mode. If we see the interactive mode, in the interactive mode we can't create programs, we can simply check the particular statement, because when you write one line code, in the next line you will get your answer. Okay, got it? So this is the first mode of the Python programming language, how to work with the Python, that is the interactive mode. Now move to the next point, that is the script mode. In the script mode we can create the program. Okay, we can create multiple commands. Okay, like how it is possible. See how to work with the script mode. To work with the script mode, we have opened the sorry now we have opened the ideally को कैसे ओपन करेंगे वो मैं आपको बता चुका हूं। ओके, आइडियली बाय डिफॉल्ट इंटरेक्टिव मोड में ओपन होती है। अब हमें क्या करना है, प्रोग्राम्स को क्रिएट करना है। तो प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके फाइल मेन्यू में जाना है। फाइल मेन्यू में जाके सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिलेगा, न्यू फाइल। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, देन क्लिक ऑन द न्यू फाइल, एंड व्हेन यू click the new file, then another notepad file will appear. It look like the notepad, that's why I am using notepad, but this is the part of IDLE only. Now one untitled IDLE open. Okay, now here you can type your code. Okay, आप यहाँ पर अपने कोड को टाइप करोगे एंड डेफिनेटली यू हैव टू सेव दैट डॉक्यूमेंट विद द .py एक्सटेंशन। आपने जो भी कोडिंग किया है उसको .py एक्सटेंशन के साथ में आपको उसको सेव करना है। देन टू रन द कोड वी हैव टू ऑप्शंस, आइदर क्लिक ऑन दिस रन, okay, run module, and simply you can press F5 from the keyboard. It's on up to you. Clear? Now let me show you, these are the two modes. Here see here, in this untitled notepad you can specify your coding, any coding, okay, of any number of lines. Here you can type your code, आप अपने कोड को टाइप कीजिए, उसको सेव कीजिए। सेव करने के लिए आपको एक नेम यूज में लेना होगा, बट उसके आगे .py एक्सटेंशन जरूर लगाना है। ओके, बाय डिफॉल्ट ये py ऐड करता है, इसके अलावा आपको चेंज नहीं करना है उसको। ठीक है, देन F5 कीबोर्ड से प्रेस कीजिए या फिर रन मेन्यू के ऊपर जाके अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो। क्लियर? आई थिंक वर्किंग इन स्क्रिप्ट मोड इज क्लियर। हाउ टू क्रिएट द पाइथन प्रोग्राम्स, ये क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं एक सिंपल प्रोग्राम की, हम पाइथन में प्रोग्राम्स बनाएंगे कैसे। ओके, सो फॉर दैट, and definitely if you want to work with the Python programming language and if you want to create the Python program, then you have to use script mode right now. So go on the new file, create new file. Now
मैं हमेशा मेरी क्लास स्टार्ट करता हूँ एक सिंपल एडिशन ऑफ टू नंबर्स के प्रोग्राम से, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जब भी हम प्रोग्राम यदि आप प्रोग्रामिंग के अंदर नए हो तो एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी आपको कोई प्रोग्राम दिया जाता है तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपको यूजर से कितनी वैल्यू इनपुट लेनी है, क्या हमें कैलकुलेट करना है और क्या हमारा आउटपुट हमें चाहिए। ये तीन चीजें आपके प्रोग्राम को बनाएंगी। ठीक है, यदि आपको ये तीन चीजें पता है तो आप आराम से कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो। ओके, थ्री थिंग्स, व्हाट आर द इनपुट वैल्यूज, व्हाट यू वांट टू कैलकुलेट, एंड थर्ड वन इज द व्हाट विल बी द आउटपुट, क्या आप कैलकुलेट करके रिजल्ट चाह रहे हैं। ये तीन चीजें। सो हम एक प्रोग्राम क्रिएट करने जा रहे हैं जो क्या करेगा, यूजर से दो वैल्यू इनपुट लेगा एंड उन दोनों का एडिशन डिस्प्ले करेगा। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम, वेरी फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, एंड मेरी एक आदत है, मैं कभी भी पहली बार में करेक्ट प्रोग्राम नहीं बनाता हूँ और उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। ठीक है, सो बात करते हैं प्रोग्राम कौन सा है। ठीक है, हम प्रोग्राम, ये मैंने हैश के साथ में कमेंट स्पेसिफाई किया हुआ है। आई थिंक कमेंट्स के बारे में नहीं पता है तो बता देता हूँ, कमेंट्स आर द अनएग्जीक्यूटेबल कोड यूज ओनली फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पज। यहाँ पर मैं हैश सिंबल यूज में ले रहा हूँ कि हम क्या प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं उसको बताने के लिए। सो एडिशन ऑफ two number. For that you have to take two values as input. Okay, so I am using, okay, num1 a input, then enter first number. We will require two number here. So the if you want to get input from the user, then we have to use input function. This is the built-in function. Okay, now after that b equal to input, then enter second number. Okay, this is my second statement. So in this code we want to get two numbers as input, so I have used here a and b, two variables. Definitely if you want to store anything in the computer system you will require memory, राइट ना। आई थिंक सपोज दैट आपके पास में पेन ड्राइव है, उसमें मूवीज हैं, यदि आप अपने लैपटॉप के अंदर और डेस्कटॉप के अंदर आप उसको सेव करना चाहिए तो क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए। यदि मेमोरी नहीं है तो हम उसको सेव नहीं कर पाएंगे। जब हम हमारे प्रोग्राम्स को रन करते हैं तो प्रोग्राम जब भी रन होते हैं तो रैम मेमोरी यूज में लेते हैं। आपने कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू एंटर की है वो कहाँ जाके स्टोर होंगी, मेमोरी में, रैम मेमोरी के अंदर स्टोर होंगी। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसकी लोकेशन हमें नहीं पता होती है, इसलिए मैंने क्या यूज में लिया है, ए और बी। क्या इंडिकेट करने के लिए लिया है, ए के ए एक मेमोरी लोकेशन, जैसे आपका घर है, एक पर्टिकुलर एड्रेस है उसका, एज इट इज सेम हम कुछ वैल्यूज लेंगे, वो वैल्यू किसी ना किसी एड्रेस के ऊपर रैम के अंदर होंगी, उसको इंडिकेट करने के लिए मैंने ए और बी लिया है। ए और बी क्यों लिया, क्योंकि हमें उसका एड्रेस नहीं पता है, सिंपल। ओके, देन हमें एडिशन परफॉर्म करना है तो एडिशन का एक रिजल्ट आएगा, वो मैंने सी के पास में स्टोर करवा दिया, सी इक्वल टू ए प्लस। ओके, सिंपल एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, हमने प्लस करवा दिया देन प्रिंट करवा दिया सी को। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम हमने बनाया है। ओके, अब जब भी आप इसको, प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको रन करना है, बट रन करने से पहले ये आपसे प्रोग्राम को सेव करवाएगा। आपको क्या करना है, कीबोर्ड से F5 को प्रेस करना है या फिर आपको रन मेन्यू में जाना है, रन मॉड्यूल करना है, आपकी चॉइस है, जो भी आप करना चाहो। और जैसे ही आपने इसको रन किया तो सबसे पहले आपसे पूछेगा, आपको इसको सेव करना होगा, तो ओके कीजिए। आपसे नेम पूछेगा, यहाँ पर आपको इसका नेम स्पेसिफाई करना कंपल्सरी है। ओके, सो मैंने यहाँ पर हम पहला प्रोग्राम बना रहे हैं, सिंपल एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पर नेम दे रहा हूँ एडिशन। ओके, अब पाइथन फाइल्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो डॉट पी वाई लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑटोमेटिकली डॉट पी वाई लेगा। देन इसको सेव कीजिए, सेव कर दिया जी, हो गया सेव। अब देखिए कि जैसे ही ये सेव हुआ तो रन भी हो गया। अब रन करने के बाद में देखिए क्या रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पर आपको एक नंबर स्पेसिफाई करना है, 100 100 आ गया।
जैसे आप एंटर की प्रेस करोगे यहाँ पर तो सेकंड नंबर आपसे मांगेगा। मैंने कर दिया 200, रिजल्ट क्या आना चाहिए, 300 आना चाहिए ना, बट रिजल्ट मेरे हिसाब से 300 तो नहीं आएगा। मैंने ये चीज पहले बोल दी थी कि पहली बार में मैं कोई प्रोग्राम सही नहीं बनाता और उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 100 और 200 दोनों क्या हो गए, कॉन्केट हो गए, कंबाइंड हो रहे हैं दोनों। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है, उस रीजन की बात करते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हुआ क्यों। 100, why we use plus operator, we use plus operator to perform addition of two numbers, right ना, टू नंबर, दो नंबर को आपस में ऐड करने के लिए हम प्लस ऑपरेटर यूज में लेते हैं। एंड आई हैव यूज्ड हियर प्लस ऑपरेटर, हमने यहाँ पर प्लस ऑपरेटर यूज भी लिया है। लेकिन इस प्लस ऑपरेटर ने क्या किया, ये 100 और 200 को ऐड करने के बजाय क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, 1 0 0 2 0 0 कर दिया। इसके पीछे रीजन क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। देखिए पाइथन के अंदर यदि आपने इनपुट फंक्शन यूज में लिया है, हमने यहाँ पर इनपुट फंक्शन यूज में लिया है, क्यों लिया, सबसे पहली चीज क्यों लिया, इसके पीछे रीजन क्या है। इफ यू वांट टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर, सिंपल सी चीज है, इफ यू वांट टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड देन वी विल रिक्वायर इनपुट फंक्शन, so it enable you to take input from the user with the help of keyboard. Okay, this is the simple definition of the input. Okay, हम सिंपल प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, बट इस सिंपल प्रोग्राम में हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई, ये इनपुट फंक्शन क्या है, तो मैं इस इनपुट फंक्शन की ही बात कर रहा हूं फिलहाल के लिए। ठीक है, नाउ ये जो इनपुट फंक्शन है, इफ यू वांट टू राइट डेफिनेशन फॉर द इनपुट यू कैन नोट इट डाउन। द इनपुट फंक्शन इज यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, बट देयर इज वन प्रॉब्लम, एक छोटी सी प्रॉब्लम है इसके साथ में। आप इसके अंदर चाहे कोई भी टाइप की वैल्यू एंटर करो, आप चाहे इसके अंदर नंबर एंटर कर दो, चाहे बुलियन एंटर कर दो, दैट मीन्स ट्रू और फॉल्स एंटर कर दो, ठीक है, कुछ भी एंटर कर दो, अल्फाबेट्स कर दो, it will convert all the data into the strings only. String means anything that is included in the single quotes, double and triple quotes. In the Python, string means if you see the string, it is the collection of alphabets. But in the Python, anything that is included in the single, double and triple quotes will be treated as a string. ओके वो स्ट्रिंग रहेगी। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर इनपुट फंक्शन यूज में लिया, तो इस हमने नंबर एंटर किया, क्या एंटर किया था हमने नंबर एंटर किया था 100, राइट ना, हमने 100 नंबर एंटर किया। लेकिन ये डेफिनेटली 100 एक न्यूमेरिक वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, लेकिन इनपुट फंक्शन ने क्या किया, इस इनपुट फंक्शन ने क्या किया, आपके इस 100 को किस में कन्वर्ट कर दिया, आपके 100 को कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग के अंदर। ओके, अब यदि आपको इस स्ट्रिंग डेटा को नंबर में वापस से कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर टाइप कास्टिंग करनी होगी। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है एक डेटा टाइप के डेटा को दूसरे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना। ओके, सो हियर आई एम यूजिंग int देन ब्रैकेट। ये जो मैं ब्रैकेट नोट कर रहा हूँ, ब्रैकेट लगा रहा हूँ ना, ब्रैकेट जिसके आगे भी लगा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फंक्शंस। ओके, सो यहाँ पर भी मैंने int ले लिया बिकॉज आई वांट टू कन्वर्ट the data into the integer. If you want to convert it into a float, then in place of int you can use float. Okay, then now see the result. Now I have made two changes. I have in the a and b I have used one typecast operator. This is the typecast operator because it will convert the string data into the numeric data. Okay, so now again run the code. So when I am pressing F5 from the keyboard, so okay, again save it. Now enter the same number, I am using the same number. Okay, 200. Now see the result, 300। प्रोग्राम करेक्ट है, हमारा प्रोग्राम यही था ना कि हमें नंबर्स का एडिशन परफॉर्म करना था, राइट ना। सो दो नंबर को इनपुट में लिया इसने, इस बार इसने कॉन्केट नहीं किया, इस बार इसने कंबाइन नहीं किया, इस बार इसने एडिशन परफॉर्म किया है। आई थिंक क्लियर हो गई होगी ये बात, क्यों पहले क्या हुआ था और अब क्या हुआ है। पहले क्या था, इनपुट फंक्शन हमारे से जो भी डेटा लेता है वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है। डेफिनेटली आपने नंबर एंटर किया था, बट इट विल this 100 and 200, these I am talking about these,
These 100 and 200, I am talking about these two values, 100 and 200. These 100 and 200 will be converted into the string just because of the input. With the help of input function, you can take the string data only. Okay, but we want to perform calculations, and on the string data we can't perform calculations. So what we have to do, we have to convert the string data into the numeric format. So we have to perform typecasting. Typecasting का मीनिंग क्या होता है, एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना. ऑलराइट, राइट. सो हियर आई हैव यूज्ड हियर int एंड int. int यहाँ पर एक फंक्शन है जो इनपुट में जो भी डेटा हमने प्रोवाइड किया है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा. ओके, क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर कोई भी कमेंट डालेंगे. कोई भी डाउट्स है तो उसका आंसर मैं पर्सनली आपको प्रोवाइड करूंगा. क्लियर है? नाउ अब थोड़ा सा चेंज करते हैं प्रोग्राम को, थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं. नाउ इन प्लेस ऑफ ओनली द एडिशन आई वांट टू परफॉर्म all the operation, all the arithmetic operations. Okay, arithmetic operations में क्या क्या इंक्लूड करना, हमें प्लस करना है, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है एंड पावर फाइंड आउट करनी है. ये सारी चीजें हमें करनी है. तो व्हाट वी वांट टू डू, आई वांट टू परफॉर्म एडिशन कॉमा सब्ट्रैक्शन कॉमा मल्टीप्लिकेशन भी करना है मेरे को, डिवीजन भी करना है. डिवीजन के लिए हम यहाँ पर स्लैश साइन यूज में लेते हैं. ओके, कंप्यूटर्स के अंदर, मैथ्स में आप डिवीजन साइन कुछ और लगाते हो. ओके, देन रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए पाइथन के पास में है परसेंटेज साइन, बट इसको हम परसेंटेज नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर. क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑपरेटर. ओके, मॉड्यूलस के बाद में पावर फाइंड आउट करनी है, और पावर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में जो ऑपरेटर है वो है टू टाइम मल्टीप्लिकेशन साइन. ओके, ये जो ऑपरेटर है हमारे पास में, ये पावर साइन है, एक्सपोनेंट का साइन बोलते हैं इसको, पावर सिंबल. ठीक है, सो पावर नहीं लिखेंगे, पीओडब्ल्यू नहीं लिखेंगे, हमें लिखना है टू टाइम स्टार साइन. ओके, सो प्रोग्राम क्या है हमारा, इसी प्रोग्राम के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहा हूं. हमें क्या करना है, हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन, मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है, पावर फाइंड आउट करनी है. ओके, देन c इक्वल टू a प्लस b कर दिया. इंस्टेड ऑफ c आई एम यूजिंग add. Is there no problem? I think I am using a b c. Basically these are the variable name and these are the identifier. In the next video I will cover the basic concept and the fundamental of the Python programming language that has what are the identifier, what are the keywords, what are the naming rules for the ABC. These are the identifiers. So what are the naming rules for the identifier? हम इन सब चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे. ठीक है, फिलहाल के लिए तो एक सिंपल सी प्रोग्राम के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हम प्रोग्राम बनाएंगे कैसे. अब देखिए, मैंने जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी उस टाइम मैंने आपको एक चीज बोली थी कि आपको एक चीज बताई थी छोटी सी, कि आपको क्या करना है जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें कितनी वैल्यू इनपुट में लेनी है. द फर्स्ट थिंग, कितनी वैल्यू हमें इनपुट में लेनी है. नंबर टू, क्या कैलकुलेट करना है. टू, थर्ड वन, रिजल्ट क्या चाहिए. तीन चीजें हमें माइंड में रखनी है. तो अब यदि हम इसकी बात करते हैं, हमें कितनी वैल्यू इनपुट में चाहिए भैया, दो वैल्यू इनपुट में चाहिए. वी विल रिक्वायर टू वैल्यू एज इनपुट बिकॉज वी वांट टू परफॉर्म एडिशन ऑफ टू नंबर्स. सो these are the two statements, a input, enter first number, enter second number. Okay, now we want to perform addition, subtraction, multiplication, division, modulus, power. We want to perform 6 different operations. Okay, so we will get definitely 6 results, and to store these 6 results we will require 6 variables also. Okay, so instead of c I am using add equal to a plus b कर दिया. Then subtract equal to a minus b definitely. Then sorry, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टी नेम से वेरिएबल ले लिया, मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी आ जाएगा. देन डिवीजन के लिए div ले लिया, div इक्वल टू a डिवाइड बाई b आ जाएगा. देन रिमाइंडर के लिए rem इक्वल टू a मॉड्यूलस b. देन आफ्टर दैट पावर के लिए pow इक्वल टू मैंने कर दिया a, क्या बताया था सिंबल, डबल टाइम स्टार साइन आएगा, a पावर b. ओके, क्लियर.
Now, see, every program you can divide this program into three parts also. Number one is the input, number two calculation, and third one is the printing result. So starting two statements A and B, these are the two input values. These are the input statement because they will give instruction to the Python compiler that read the value from the keyboard and assign to the variable A or B. ओके ये सिंपली कंप्यूटर सिस्टम को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे कि कीबोर्ड से यूजर इनपुट करने वाला है कुछ, उनको ए और बी को असाइन करवा दीजिए. सो दीज आर टू इनपुट स्टेटमेंट्स. ये इसके बाद में हमने किया जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, ये सभी क्या है, ये सभी हम वैल्यूज को कैलकुलेट करवा रहे हैं. सो दीज आर द कैलकुलेशन. ओके, नाउ आफ्टर दैट वी वांट टू प्रिंट द रिजल्ट आल्सो. नाउ इस बार प्रिंट करेंगे थोड़ा सा अलग वे में. हमें प्रिंट करना है तो सबसे पहले क्या आ गया, ऐड का रिजल्ट आएगा. ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो चीज आपको एज इट इज प्रिंट करवानी है ना, उसको हम हमेशा डबल कोट्स में रखेंगे प्रिंट में. उसके बाद मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को, मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए हम कॉमा साइन यूज में लेते हैं. सो ऐड इक्वल टू आ गया, उसके बाद में कॉमा पुट किया, देन इसका वेरिएबल नेम ऐड. ओके, देन आफ्टर दैट अगेन print command. You can print it in the same line also and you can print in the different line. Okay, subtraction में, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, किसके पास इसका रिजल्ट है, SUB के पास में है. देन प्रिंट करवाते जाइए सभी को. मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट किसके पास में है, मल्टी के पास में है. देन आफ्टर दैट प्रिंट करना है हमें डिवीजन को. सो डिवीजन इक्वल टू में क्या आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा, div इज द वेरिएबल. देन आफ्टर दैट प्रिंट, प्रिंट में रिमाइंडर, रिमाइंडर आ जाएगा आपका rem वेरिएबल के पास में है. देन आफ्टर दैट प्रिंट, प्रिंट में आ जाएगा आपका पावर, पावर किसके पास में है, POW के पास में है. क्लियर है. अब आप अपने प्रोग्राम को रन कीजिए. प्रोग्राम को रन किया, ठीक है. इसने आपसे क्या मांगा, एंटर फर्स्ट नंबर. एंटर फर्स्ट नंबर, सपोज आपने 10 एंटर कर दिया, एंटर सेकंड नंबर 20 एंटर कर दिया. देन सी द रिजल्ट. ओके, this is the result. So I think all of you can see the output of this code. Clear है. Okay, I think मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी आपको, पाइथन इज एक्सप्रेसिव एंड वेरी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हो. देखिए हमने ना तो कहीं कॉलन लगाया, ना कहीं कॉमा लगाया, ना कहीं सेमी कॉलन लगाया, जैसे बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम करते हैं. सिंपली हमें जो करना है वो हम करते चले गए, देन प्रिंट करवाते हैं रिजल्ट को. सो काफी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, टाइप बाइंडिंग नहीं है. देखिए मैंने इस पूरे कोड में कहीं भी कोई डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करी है. इस टाइप की ये काफी सारी चीजें हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, काफी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. जब आप इसको कवर करोगे तो काफी मजा आने वाला है आपको. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट the introduction of Python programming language and how to create the Python programming language. हमने इस वीडियो के अंदर क्या क्या कवर किया है, व्हाट इज पाइथन, पाइथन है क्या चीज, पाइथन के फीचर्स क्या क्या हैं, ऐसे ऐसा क्या रीजन हो गया कि सीबीएसई ने पाइथन को यूज में ले लिया इन प्लेस ऑफ C++ एंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड आफ्टर दैट हाउ टू वर्क विद द पाइथन डेफिनेटली, एंड हाउ टू इंस्टॉल द पाइथन, पाइथन को कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे यूज में लेना है, ये तो आपने अभी दो प्रोग्रामिंग के साथ में देख ही लिया है. ओके, नाउ it's all about this video. Now I think I have clear what is input function and how to work with the Python and how to take input with the help of keyboard and how to convert the data into the numeric format that we have entered in the with the help of input function. That's all in this video. Thank you very much. Please like and subscribe the video. Thanks a lot. Thanks for watching.